Hello children, welcome back to our Adquark YouTube channel. I am back again with a new presentation. This presentation is for class 5. Subject is English grammar. It is chapter 11 verbs. We are having the book PC Wren's grammar and it is our lecture number 1 for the chapter. Okay. So let's see what we are going to study in today's lecture. Children, in today's lecture we are going to study verb. Verb means kriya. Okay, I think all of you have studied this chapter in your previous classes. Okay, I am sure कि आप सबने अपनी previous classes में ये chapter जरूर पढ़ा होगा. In English as well as in Hindi also. Okay, so let's see what are we going to study in this chapter today. Okay, first of all we are going to do the definition. So, a verb is the word used to describe an action or state. Okay, verb is a word. Verb क्या होता है? एक word होता है, शब्द होता है used to describe, जो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए. क्या डिस्क्राइब करने के लिए? एक्शन और स्टेट. या तो किसी चीज का एक्शन की कोई काम हो रहा हो या फिर कोई स्टेट. ओके, लाइक आई एम हैप्पी, देन एम विल बी स्टेट. एम विल बी वर्ब हियर विच इज शोइंग द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, जो हमें हैप्पी होने की स्टेट दिखा रही है. Okay, like here few examples are given like nap मतलब छोटी सी झपकी लेना, read पढ़ना, jump कूदना, run दौड़ना, ride okay किसी चीज पे ride करना, चलाना. Okay children? Okay, in this we are going to study three different types of verbs. First is main verb. Okay, second is helping verb and one more is linking verb. So, first is main verbs. Okay, first of all we are going to do the definition. Definition. The main verb in the sentences shows the action or state of being of the subject. ठीक है, मेन वर्ब जो होती है वो या तो हमें एक्शन दिखाती है या क्या दिखाती है? सब्जेक्ट का स्टेट दिखाती है. ठीक है, स्टेट मीन्स राज्य या नहीं, सब्जेक्ट की पोजीशन दिखाती है. ओके, मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो. ओके, विद द हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, या तो वो अकेली हो सकती हैं. ओके, या फिर वो कैसे हो सकती हैं? दे कैन बी यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब. ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को. ओके, सो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ लेट्स क्लियर द डेफिनेशन विद वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स: विनोद रिपेयर्ड द टीवी. Okay, here second is a bird flies. Okay, विनोद repaired the TV. विनोद ने टीवी रिपेयर किया. A bird flies. Bird ने क्या किया? It flies. पक्षी उड़ता है. Okay, now see what did विनोद do? He repaired. So क्या एक्शन हुआ इसमें? रिपेयर करने का. Okay, क्या काम हुआ? रिपेयर करने का. What does the bird do? पक्षी ने क्या किया? इट फ्लाइज. ठीक है, पक्षी क्या काम करता है? उड़ने का काम करता है. सो बोथ दीज आर एक्शन. सो बोथ दीज आर मेन वर्ब्स. मेन काम क्या हुआ? रिपेयर करने का. मेन काम क्या हुआ? उड़ने का. द वर्ब्स रिपेयर्ड एंड फ्लाइज इन द अबव सेंटेंसेस आर मेन वर्ब्स. ओके, सो इट इज क्लियर. सेकेंड इज आर हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है चिल्ड्रन, इट इज वेरी इजी एंड आप करते भी रहते हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू द डेफिनेशन. वर्ब्स
like is, am, are, was, were, will, have, has, had, do, does, did, done are called helping verbs when they support the main verb. Okay, when all of these verbs support the main verb, then these are called helping verbs or auxiliary verbs. ठीक है, so let's see examples. Sita is singing. Okay, is क्या है? Helping verb है. Okay children, and singing is main verb. So is जो है is helping, वो help कर रहा है singing की. And what is singing? Singing is main verb. How he was bitten by a dog. Was helping verb, bitten is main verb. Okay, so helping verb क्या कर रहा है? main verb की help कर रहा है. She will come tomorrow. Will helping verb, come is main verb. Okay, and what helping verb is doing? Helping verb is helping what? main verb. main verb की help कर रहा है to clear the meaning of the sentence. The book has been found. book जो है has been found, मिल गई है. Now what is helping verb here? Which is the helping verb? has. has helping verb है और ये किसकी help कर रहा है? What is the main verb here? found. Okay, has been helping verb है, found की help कर रहे हैं ये दोनों मिलकर. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था ना, इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वन इज मेन वर्ब, सेकंड इज हेल्पिंग वर्ब, थर्ड इज लिंकिंग वर्ब. सो नाउ आई थिंक हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब यू माइट हैव स्टडीड, आपने पहले जरूर पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस. बट दिस लिंकिंग वर्ब, इट इज लिटिल बिट न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सो लिसन टू इट very carefully. Okay, it's not difficult, it's very easy, just you have to listen to it carefully. ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है and it is easy. First of all, definition: verbs that join the subject to some word which describes it are called linking verbs. ठीक है, कोई भी वर्ड जो बिना मेन वर्ब के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दे वो क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है. ठीक है, जो बिना मेन वर्ब के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दे वो क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है. कैसे? एग्जाम्पल्स: आई एम योर फ्रेंड. व्हाट इज लिंकिंग वर्ब हियर? एम. अब आप बोलोगे एम तो हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जब होती है जब उसके साथ कोई वर्ब होती है. ठीक है, और वो वर्ब की हेल्प कर रही हो. Look now, I here is a pronoun, your here is a pronoun, friend here is a person. friend क्या है? कोई person है, व्यक्ति है. So friend here is a noun. तो इसमें सिर्फ am के अलावा और verb नहीं है, तो am हमारे पास क्या है? linking verb. ठीक है. Mona is strong. Mona name of a person, so it is a noun. Strong. Strong क्या है? It is adjective. ठीक है, और बीच में और अलग से कोई वर्ब नहीं है, तो इज क्या है यहाँ पे चिल्ड्रन? इज लिंकिंग वर्ब है जो नाउन को एडजेक्टिव से जोड़कर एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है. ओके, द चिल्ड्रन वर हैप्पी. आई हैव अ CD प्लेयर. द हॉल हैज अ लॉट ऑफ विंडोज. ठीक है, सो इन सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब्स नहीं है. ठीक है, सो दैट्स वाई दीज हैज, हैव, वर, वॉज आर गिवन एज लिंकिंग वर्ब्स. इन द गिवन सेंटेंसेस द वर्ब्स आर, एम, वर, हैव और हैज आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, आर नॉट हेल्पिंग एनी वर्ब. सो दीज वर्ब्स आर नाइदर एक्शन वर्ब्स. ठीक है, ना ही ये कोई एक्शन कर रही हैं, दौड़ने का, खाने पीने, सोने का, उठने का, चलने का. ठीक है, सो दे एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग. दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और हैज एंड नॉट द सब्जेक्ट डज. ये हमें बता रही हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है. ठीक है,
या सब्जेक्ट क्या है, लाइक चिल्ड्रन वर हैप्पी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन और वो क्या है, वो खुश हैं, ठीक है। नोट दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, ये हमें ये नहीं बता रही कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, ये हमें या तो स्टेट बता रही है या फिर उसकी व्हाट द सब्जेक्ट हैज, कि सब्जेक्ट के पास क्या है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। Okay, first exercise I will give you as homework. We are going to do it with exercise 12. We are going to start it with exercise 2. Exercise 2. Underline the verbs in the following sentences and write whether they are linking verbs or main verb. Main verb कौन सी हैं पता है ना आपको, action verbs, और linking verb कौन सी हैं जिसमें बिना main verb के sentence में is, am, are, was, were words दिए हैं, ठीक है। He seems innocent. ओके, seems, अब आपके पास कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, ना ही कोई एक्शन हो रहा है, वो इनोसेंट लगता है, दिखता है, ठीक है। देन seems वर्ब है, seems will be linking verb. The rose looks beautiful. ओके, no action is going on, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, देन लुक्स विल बिकम लिंकिंग वर्ब। इट अपीयर्स डेंजरस, ओके, इट अपीयर्स डेंजरस, ये खतरे से भरा हुआ लगता है, देन अपीयर्स विल बी लिंकिंग वर्ब। वाई, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, the driver stopped the train. Now what action is going on here? The action of stopping the train. ट्रेन को रोकने का एक्शन हुआ, किसने किया, ड्राइवर ने, तो वो एक्शन क्या हो जाएगा, इट इज मेन वर्ब, ठीक है। सो आपको क्या करना है चिल्ड्रन, इन फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन सीम्स, इट इज लिंकिंग वर्ब, इन सेकेंड यू हैव टू अंडरलाइन लुक्स, इट इज लिंकिंग वर्ब, थर्ड अपीयर्स एंड इट इज लिंकिंग वर्ब, फोर्थ stopped and it is main verb. The mangoes taste delicious, ठीक है, मैंगो का टेस्ट कैसा होता है, delicious. So here it is linking verb, कौन सा, टेस्ट, underline this. He shot an arrow near the bear. Okay, shot मतलब मारा उसने, किसको, बियर के पास, किसको, एरो को, तीर को, ओके। शॉट क्या है, शॉट करने का, एक्शन हुआ मारने का, सो इट इज मेन वर्ब। ही विल बी एंग्री विद यू, विल बी एंग्री, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हुआ, ओके, देन इट विल बी, सॉरी, विल बी हेल्पिंग कर रहा है किसको, एंग्री को, उस नाराज होने का, गुस्सा होने का एक्शन काम हो रहा है, एंड विल बी क्या कर रहा है, विल बी इज अ हेल्पिंग वर्ब, सो एंग्री हियर इज अ, दीस ऑल आर हियर मेन वर्ब्स, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बतानी, मेन या लिंकिंग बताना है, सो ऑल थ्री देयर आर मेन वर्ब्स। द मैन स्टिल लाइव्स, ठीक है, द मैन स्टिल लिव्स, सो लिव्स विल बिकम लिंकिंग वर्ब, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। शी गोट स्केयर्ड, वो डर गई, क्या एक्शन हुआ, डरने का, सो इट इज मेन वर्ब हियर, ओके, क्या काम हो रहा है, डरने का काम हो रहा है। द गर्ल टर्न्ड रेड विथ शेम, ठीक है, लड़की शर्म से लाल हो गई, ओके, देन टर्न, टर्निंग रेड विल बिकम मेन वर्ब, टर्न्ड इज मेन वर्ब। नाउ एक्सरसाइज 3, underline the verbs in the following sentences and write whether they are linking verbs or helping verbs. पहले हमने क्या किया था, main verb और linking verb, अब हम करेंगे linking verb और helping verb, ठीक है। So let's see the exercise. We have eaten our lunch. Have eaten. Have अब आप बोलोगे helping verb है, yes it is helping verb. Why? क्योंकि action हो रहा है खाने को, खाने का, eaten, it is action, ओके, और have इसकी हेल्प कर रहा है, तो इट इज हेल्पिंग वर्ब। आई एम रनिंग, am is helping verb, ओके, सो और किसकी हेल्प कर रहा है, रनिंग की, हेल्पिंग वर्ब। शी हैज अ नाइस ड्रेस, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सो इट इज लिंकिंग वर्ब। आई एम टोल,
Okay, no action is there, so it is linking verb. Children are at school. Okay, children are at school. Children, it is wrong. Here it will come L, linking verb. Okay, because no action is going on. बच्चे स्कूल में हैं तो क्या होगा? linking verb. Okay, you have to correct it. Here you have to write linking verb, LV. They are playing. Which action is going on? Action of playing is going on. So it will become helping verb. Suzanne is a nice girl. Suzanne is a nice girl. Okay, no action is going on, so it will become linking verb. She is studying hard. Is studying. Which action is going on? Action of studying. पढ़ने का काम हो रहा है. So is will be helping verb. Mike was at my store. ठीक है, नो एक्शन इज गोइंग ऑन. माइक मेरे स्टोर पर था, सो इट इज लिंकिंग वर्ब. माइक वॉज हेल्पिंग माइकल. ओके, माइक किसका मदद कर रहा था? माइकल की. तो अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे? मदद करने का. किसकी मदद करने का? माइकल की. ओके, सो वॉज क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब. ओके चिल्ड्रन, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. Now, as you all know, I give homework to you at the end of lecture. So, I am going to assign you the homework. Okay? Complete the sentences by choosing the correct helping verb. ठीक है, आपको correct helping verb choose करनी है and fill करनी है. Dash call her mother. Did, was, had. Okay? Dash your aunt coming tomorrow. Did, is, had. सेंटेंस की टेंस की पहचान करके भरना. डैश यू स्पोकन टू योर टीचर. ओके, बिफोर. डैश यू स्पोकन टू योर टीचर बिफोर. हैव, डिड, वर. वेयर डैश यू गोइंग ऑन योर समर वेकेशन. ठीक है, वर, बीन, डिड. वट डैश द किड्स डूइंग वेन यू लास्ट सॉ देम. क्वेश्चन मार्क विल कम हियर. वॉज, आर, वर. ठीक है, बच्चे क्या कर रहे थे जब तुमने उन्हें लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, टेंस की पहचान करके भरना. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 10 लेक्चर 1. ओके, चैप्टर 10 कौन सा था? प्रोनाउन. एंड व्हाट डिड आई गिव यू? आई गेव यू फिलिंग द ब्लैंक्स विद एन इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन. आपको ब्लैंक्स को इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन से फिल करना था. डैश इज एट द डोर. वी हैव टू फिल इट विद हु. डैश इज योर डेस्क. विच इज योर डेस्क मीन्स तुम्हारा डेस्क कौन सा है. दैट इज द बुक विच आई लॉस्ट. ये वो बुक है जो गुम गई थी. दिस इज द गर्ल हु इज टॉप ऑफ द क्लास. ये वो लड़की है जो क्लास में टॉप पर है. वट इज योर फोन नंबर. तुम्हारा फोन नंबर क्या है? क्वेश्चन मार्क विल कम हियर. हु इज द टॉप बॉय. टॉप बॉय कौन है? डैश इज योर क्लास. ओके, विच इज योर क्लास. तुम्हारी क्लास कौन सी है? और वी कैन फिल हियर वेयर ऑल्सो. वेयर इज योर क्लास. तुम्हारी क्लास कहाँ है? ठीक है, बोथ आर करेक्ट. विच इज योर क्लास. तुम्हारी क्लास कौन सी है? वेयर इज योर क्लास. तुम्हारी क्लास कहाँ है? ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट. वी कैन फिल बोथ. टेक एनीथिंग डैश यू लाइक. ओके, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो. ओके, टेक एनीथिंग विच यू लाइक. सो इन ई वी विल फिल व्हाट. इन एफ वी विल फिल हु. इन जी वी विल फिल विच. इन एच वी विल फिल विच. डैश गेव यू द नाइफ. हु. ओके, पुट हियर क्वेश्चन मार्क. हु गेव यू द नाइफ. तुम्हें नाइफ किसने दिया? Okay, what will come here? Who. Where is the watch which father gave you? Where is the watch which father gave you? वो घड़ी कहाँ है जो तुम्हें पिताजी ने दी थी. वो घड़ी कहाँ है जो तुम्हें पिताजी ने दी थी. ओके चिल्ड्रन, सो ई में क्या भरना है? What. एफ में क्या भरना है? Who. जी में क्या भरना है? Which. एच में क्या भरना है? Which. Who. आई में क्या भरना है? Who. जे में क्या भरना है? विच. ठीक है, एंड वेयर एवर द क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग यू हैव टू पुट देम. कहाँ पे? ई में
व्हाट इज योर फोन नंबर, ये क्वेश्चन है, तुम्हारा फोन नंबर क्या है यहाँ पे लगाना. एंड हियर हु गेव यू द नाइफ, तुम्हें चाकू नाइफ किसने दिया. पुट 1 क्वेश्चन मार्क हियर. ओके, I hope all of you have enjoyed today's lecture. Now I would like to request all of you to subscribe our YouTube channel and share our videos, like our videos, and tell your friends and relatives to subscribe our channel and like and share our videos. Okay, I hope you are enjoying this type of learning, this online learning classes. All of you are enjoying. Okay, have a safe and nice day. Okay children, bye, have a safe day.